Hello people, welcome to my channel All You Want. So here I'm back with another video with Geography chapter 2, which is globe, latitudes and longitude. And before beginning, I would like you to do a comment down for any suggestions, and if you like the video, do like, share and subscribe to my channel. And yeah, let's get started. So this chapter begins with page number 10, and the first word which needed to be explained is globe. What is globe? Globe is actually a miniature or a model of earth, and that's it for the definition of globe. What you need to know about it is that it is fixed with 2 points and tilted to a side on its axis so that it can rotate like the earth rotates. So that's why it's fixed and it rotates on its own axis. And the globe can be moved around the needle from west to east as the earth moves, and the axis on which it moves or the earth moves is imaginary line. Next term is equator, which is an imaginary line running around the globe which divides the globe or the earth in two parts and which is known as equator. It divides it into northern half and southern half, or we can say hemisphere. So now there comes a problem जिससे कि हम किसी भी कंट्री या किसी भी जगह को कैसे लोकेट कर सकते हैं. For resolving this problem, there we have created some imaginary lines जिसको बोला जाता है parallels of latitudes. These are basically the imaginary circular lines which are parallel to the equator, and it moves from equator to the poles. The latitudes are measured in degrees like 20° north, 20° south, 40° north, 40° south, and etc. Equator is considered on 0 degrees. And by now you must know that a circle is of 360 degrees and uska 1/4 part hota hai on 90 degrees. And the same way we can say that by considering equator as a straight line and the distance from equator to north pole via a straight line is we can say the perpendicular line is 90 degrees, because the 1/4 of the globe will be 360 डिग्री का 1/4 इज 90 डिग्री. सो जो हमारा नॉर्थ पोल है इट विल बी काउंटेड एज 90 डिग्री नॉर्थ, एंड जो हमारा साउथ पोल है इट विल बी काउंटेड एज 90 डिग्री साउथ. And on the 11th page here, it is given a do you know which says by measuring the angle of the pole star, जो कि हमने इससे previous chapter में भी पढ़ा था. You can recall that from that previous video. हम अपनी जो लोकेशन है, हम अपना जो प्लेस है उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं. Next, we have another heading which says important parallels of latitude, that you can see in this image also. There comes equator in the middle, which is at 0 degrees, then moving upwards, that is northwards, at 23.5 degree north, there comes Tropic of Cancer. Then moving more northwards, there comes Arctic Circle, which is at 66.5 degree north. Now, moving southwards below equator, there comes Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south, and moving more southwards, there comes Antarctic Circle at 66.5 degrees south. अब इसमें एक और चीज़ mentioned है that हमारे जो zones होते हैं which are 3 zones, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा होता है टॉरिड जोन, which gets the maximum amount of heat. And then ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक हमारा आता है टेम्परेट जोन्स, दैट इज़ नॉर्थ टेम्परेट जोन्स एंड साउथ टेम्परेट जोन्स, जहाँ पर एकदम मॉडरेट सीजन्स रहते हैं. एंड फ्रॉम आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक there lies a frigid zone, and Antarctic Circle से साउथ पोल तक there lies another frigid zone जिसमें कि सबसे ज़्यादा सर्दी होती है. ऑल्सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जैसे जैसे हम वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स पोल्स तो उतना ही ज़्यादा ठंडी बढ़ती है, एंड इट रिसीव्स द लाइक लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन. इसका रीज़न होता है कि जो सन की रेज़ होती हैं वो हमेशा स्लैंटिंग टाइप में पड़ेंगी. तो स्लैंटिंग मतलब टेढ़ा. सो
जो एग्जैक्टली सामने होगा उस पर तो सबसे ज़्यादा हीट पड़ेगी, दैट इज़ द दैट टॉरिड जोन। बट जिस तरह से वो नीचे 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 लाइक पूरा जो लाइट पड़ेगी, तो वो ऊपर एंड नीचे, जैसे कि फ्रिजिड जोन एंड नीचे जो फ्रिजिड जोन है साउथ पोल में, उधर तक वो रेस स्लांटिंग हो जाएंगी, तो उसका हीट का इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। बिकॉज जब भी जो सन की रेज हैं वो स्ट्रेट सरफेस पे पड़ेंगी, वो हमेशा ब्राइट होंगी एंड हमेशा और ज़्यादा हीट उससे जनरेट होगी। एंड इफ़ द सरफेस इज स्लांटेड, लाइक जो अपर पार्ट होगा एंड लोअर पार्ट होगा जो अर्थ का, उस पर पड़ेगी जैसे ही, दैट इज स्लांटिंग सरफेस पे, तो उस हीट का इम्पैक्ट एंड उस लाइट का इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। Coming to the next page, which is 12th page number, and the heading is Heat Zones of the Earth, which says mid-sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, which means जो torrid zone है उसमें जो दोपहर का टाइम होता है, मिड डे सन वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पर हर एक लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा हीट आती है वंस इन अ ईयर। लाइक वंस इन अ ईयर 90 डिग्री एंगल ज़रूर बनेगा ट्रॉपिक लाइक टोरिड जोन में। सो मैक्सिमम हीट टोरिड जोन में ही आती है। एंड जैसे जैसे सन रेज कम होंगी, जैसे जितनी ज़्यादा स्लांटिंग वे में पड़ेंगी अर्थ के ऊपर, उतना ही ज़्यादा जो है हीट एंड लाइट, जो सन की रेज हैं वो कम होती जाएंगी लाइक टेम्परेट जोन्स, और उससे भी ज़्यादा कम हीट और लाइट जाएगी फ्रिजिड जोन तक, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। नेक्स्ट हेडिंग वी कम टू व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। नाउ हमें लॉन्गिट्यूड्स की सब मतलब नीड क्या पड़ी, जब हम लोकेशन तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स, बट नो, हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वी वुड हैव लोकेटेड द लैटिट्यूड, बट जो उसी लैटिट्यूड पे अलग अलग कंट्रीज़ पड़ रही हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वी शुड हैव द लॉन्गिट्यूड्स, ताकि जो इंटरसेक्शन होगा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का, उसकी वजह से हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं ऑफ एनी प्लेस। Now, longitudes are again imaginary lines running from North Pole to South Pole. That is a semicircle kind of thing. Also, the distance between them decreases moving to the poles. Okay. And these lines are also known as meridians of longitude, and इनका distance जो है वो कैसे नापते हैं, degrees of longitude, उसको बोलते हैं degrees of longitude. And each degree is further divided into minutes, and minutes को और ज़्यादा further divide करेंगे, then it comes into seconds. अब जो हमारी लैटिट्यूड्स थे उनके सबकी जो लेंथ थी वो डिफरेंट थी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल साइजेस, इक्वल लेंथ, बट अब कहीं से स्टार्ट तो करना ही था। जैसे कि हम लैटिट्यूड्स को इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, उसी तरह हमें लॉन्गिट्यूड को भी काउंट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वी नीडेड टू हैव समथिंग इन द मिडिल। सो हम उसको कैसे काउंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन, दैट इज़ अगेन एन इमेजिनरी लाइन, and this prime meridian passes through Greenwich, where British Royal Observatory is located. And as like equator, the degree of prime meridian is also 0 degree. एंड नाउ जैसे हमें काउंट करनी है अपनी लॉन्गिट्यूड्स, तो हम कैसे कर सकते हैं, 30 मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, एंड उसी तरह से अगर हमें लेफ्ट साइड में जाना है, देन वी कैन काउंट 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट एंड एक्सेट्रा। सो इस तरह से हम जैसे ही इंटरसेक्शन होगा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 14, जिसमें कि एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। इसमें लिखा है अबाउट द टाइम, बिकॉज आप खुद सोचिए, अर्थ एवरी टाइम रोटेट्स, लाइक एवरी टाइम, हर समय अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो हर समय पे हर एक जगह पे जो है डिफरेंट टाइम होगा, बिकॉज सन तो अलग जगह पर है एंड अर्थ इज स्टिल रोटेटिंग, तो उसकी वजह से क्या होगा, हर जगह पे एक डिफरेंट टाइम होगा। कोई टाइम पीछे चल रहा होगा, किसी कंट्री में टाइम आगे चल रहा होगा, इनफैक्ट एक ही कंट्री में भी अलग अलग टाइम होते हैं। सो अब उससे तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, एंड दिस इज़ वाई वी हैव नॉट वी बट द साइंटिस्ट हैव डिसाइडेड दैट जो भी प्लेसेस ग्रीनविच से अहेड रहेंगी, दैट विल बी
हैविंग द टाइम मूविंग अहेड एंड जो भी जो कंट्रीज़ ग्रीनविच से पीछे रहेंगी वो सारी कंट्रीज़ में टाइम जो है पीछे चल रहा होगा। एंड सिंस जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं वो आगे मानी जाएंगी ग्रीनविच से, जैसे कि इंडिया हुई, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब कंट्रीज़ आगे हुई। सो इनका टाइम भी और ज़्यादा होगा। एंड जो कंट्रीज़ पीछे हैं लाइक हुई यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, ये सब इनमें टाइम पीछे चल रहा होगा। लाइक उनमें सपोज़ करें हमारी 11th है, 11 जनवरी डेट है, तो उनकी मे बी 10th जनवरी चल रही होगी, या फिर इवनिंग चल रही होगी 10 जन की, या फिर कोई भी टाइम, लाइक कम ही टाइम रहेगा वहाँ पे। नाउ आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। लाइक 360 डिग्रीज जो होता है, यानी कि फुल रोटेशन जो अर्थ होती है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। सिमिलरली 15 डिग्रीज 1 आवर में कंप्लीट किया जाएगा, एंड 1 डिग्री 4 मिनट्स में। यू कैन डू अ सिंपल कैलकुलेशन इन योर माइंड। सो उस हिसाब से इफ़ यू वांट टू लोकेट अ कंट्री विच इज़ ईस्टवर्ड्स ऑफ ग्रीनविच, सो आप उससे क्या करेंगे, 15 डिग्रीज इनटू 4 मिनट्स इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि आपकी करंट लोकेशन से, आपके करंट टाइम से वो 60 मिनट ईस्ट, यानी कि 60 मिनट ज़्यादा टाइम होगा। सपोज़ यहाँ पर 11 बजे हैं, तो आपकी जो कंट्री जिसमें आप देख रहे हो जो ईस्ट वर्ड्स है वहाँ पर 12 बजे होंगे, बिकॉज 60 मिनट्स अहेड वहाँ पर टाइम चल रहा है। एंड वाइस वर्सा आप वेस्ट वर्ड्स एंड कोई भी लोकेशन का इसी तरह टाइम पता कर सकते हैं। Next, we come to another heading on page number 15, that is why do we have standard time? अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होने लग जाए, बिकॉज सबकी लोकेशन, सबकी मेरिडियंस, सबकी लैटिट्यूड, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। सो इस तरह से तो बहुत बहुत दिक्कत आएगी कि हर कंट्री का, हर प्लेस का, इवन एक ही कंट्री में इतने सारे प्लेसेस है, सबका अलग टाइम होगा। सो इसका क्या कंक्लूजन निकाला, टू अडॉप्ट अ लोकल या फिर कोई भी सेंट्रल टाइम जो है डिसाइड किया है। सो हर कंट्री ने ये इस लाइक कंक्लूजन पे पहुँचे कि हर कंट्री अपना एक सेंट्रल टाइम अडॉप्ट करेगी। जैसे कि इंडिया में द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट का जो टाइम होता है वो स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरी कंट्री के लिए, लाइक हर स्टेट का, बिकॉज ऐसे देखा जाएगा तो टाइम अलग अलग होगा। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर कंट्री अपना एक टाइम जो है डिसाइड कर लेती है जिस हिसाब से वो चलेगी, एंड इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ IST। एंड जो मेरिडियन, आई वुड से द लॉन्गिट्यूड, जिसकी डिग्री को हमने अपना प्राइम टाइम माना है, उस डिग्री को यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने माना है, तो उस लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन। नाउ जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं लाइक वी वुड से रशिया, सो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू वुड लव टू नो कि वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स अडॉप्ट किए गए हैं, बिकॉज इट इज़ सच अ ह्यूज कंट्री। Also, the earth has been divided into 24 टाइम जोन्स, यानी कि 1 आवर ईच, जो कि हर जोन जो है कवर करता है 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो आई एम श्योर दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो ईच वन ऑफ यू। सो या that's it for the video. This was the last page of this chapter, and thank you so much end तक बने रहने के लिए। Bye.